So we will be studying oscillations, and a special kind of oscillation is simple harmonic motion. Even a particle just going back and forth can be an oscillation, but this is a special kind of oscillation, as you will come to know, simple harmonic motion. The simplest model for this particular oscillation is mass on a spring, which we are going to study in detail. The first thing, you won't see a mass that is attached to spring and oscillating so often, but this is an excellent model for actual systems, as you can see here. So one of the very important phenomena in nature is the phenomena of waves. Waves are a form of communication of energy from one point to another. Even light is a wave, so all the energy that travel to us is in the form of wave. Sound is a wave which behaves like this. Most forms of energy transfer from one point to another are in the form of waves. Only energy is transferred, matter is not transferred. There is a difference between sound and wind. When wind flows, actually particles from one point travel to another. But in the transmission of sound, the vibrations, there is a transmission of vibration. And these vibrations are modeled using SHM. Yeah, it causes vibration in your eardrum. Your eardrum, at the end of the day, what you hear is the vibration of your eardrum. Okay, in nature everything is vibrating in a way. So this model of mass on a spring is considered to be the most important model in all of physics, whether it is modern or like the earlier physics. One of the most important phenomena. As you can see here, this is you can see that there is a wave that is flowing from left to right. But if you focus on each particular mass is just oscillating. It behaves like a mass that is attached to spring. Obviously these are not actual springs, but this is a model where you have a wave that is traveling. In this case, this is how sound wave travels. And this can also be modeled using masses which are attached to springs. So in order to study this system, which is the next part of this chapter, first we need to study the basic system, which is mass on a spring. For this you need to know the spring force. What is the formula for spring force? Minus kx. So we will study this in detail. First let us get a visual understanding of what is happening before we jump into the equations. I have a mass that is attached to a spring. Initially there is no stretch. This spring is completely relaxed. So if I run it, nothing will happen. Also note that there is no friction between the mass and the surface. Now let me give it some initial stretch and then let me leave it. Now what's gonna happen? The spring is gonna pull this mass and this mass is gonna gain velocity. Once it reaches the center, spring will be relaxed. So there the force will go to zero, but the particle already has some velocity, already has some momentum, so it will push the spring and the spring will push it back and it will come to a stop. Again the spring will push it back. So first the particle will push the spring, then the spring will push the particle, and this will keep on happening. This is called oscillation. The particle first compresses the spring, then spring pushes the particle. So we are going to first study the kinematics of the system. Kinematics means the position, velocity and acceleration of this particle. So if you focus on the graph, this is the graph of kinematics. These graphs. So initially this is gonna be our origin, the position where the spring is completely relaxed. This is our origin. So let us give us some initial stretch. So initially the particle is at x max. With time, first the position of particle will decrease with time. Time is plotted on the x axis and the x displacement is plotted on the y axis. So this is what is happening. Initially the displacement of the particle decreases, goes to 0, and then it increases. What is there on the x axis? Time is being plotted on the x axis. The displacement, the x displacement is on the y axis. So this can get a little confusing. Let us look at it slightly differently also. This will give you a better idea. See,
What's happening here? I have a mass that is attached to a spring. For now, forget about gravity. This mass will undergo oscillations and we will see its graph. So let me give this particle some initial stretch. Oh, yeah. जो टाइम 2 सेकंड का जो रुकता है क्या उसका मतलब वो स्प्रिंग बिल्कुल वहीं आ गई सेम पोजीशन क्या जब वो एक्स एक्सिस वहीं टूटे देखो, I have a mass that is kept here. It is attached to a spring and this mass is gonna undergo oscillations. Pay attention everyone. Pay attention. This mass is gonna undergo oscillations and we are gonna plot the graph of its motion. So just look at it. The particle is undergoing oscillation. This is what happens when you attach a particle to a spring. It's a very precise motion. So one of the first things is there is a projection, there is some relation between mass undergoing oscillation and a particle that is rotating in a circle. There is this correspondence. Basically we can say a particle which is moving is the projection of a particle which is which is undergoing uniform circular motion. You can also witness it here. So सर वो सर्कुलर मोशन में वर्क डन ज्यादा है कंपेयर्ड टू द स्प्रिंग we'll come to that. Work done is zero actually in circular motion. I'll come to that. Yeah. So this is a particle which is undergoing SHM, simple harmonic motion बोलते हैं इसे. If you look at its circle view, this is a particle which is undergoing circular motion. And if you look at it from the side, you will see this particle undergoing SHM. And this is the motion which we want to study, which is the projection of a circular motion. So जैसे अगर आप किसी कई planets के moon को observe करोगे तो आपको ये दिखाई देता है टेलीस्कोप से. तो मून तो गोल गोल घूमते हैं, एवरीथिंग गोज अराउंड इन सर्कल्स राइट, ग्रेविटी. बट आपको ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि आप साइड से देख रहे हो. अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो गोल गोल घूम रहा है. अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे अर्थ को ऑब्जर्व करेगा दूर से तो ऐसा लगेगा कि वो ऑसिलेट करे अगर आप साइड व्यू देखोगे तो. एंड अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन होता है. So yeah, this was the relation between circular motion. Now let us also look at the graph. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट किया है और y एक्सिस पे ऑब्जेक्ट का y डिस्प्लेसमेंट है. जस्ट सी, जस्ट लुक एट इट. द y डिस्प्लेसमेंट इज प्लॉटेड ऑन द y एक्सिस, x एक्सिस पे टाइम है. इज दिस क्लियर? ध्यान से देखो एक बार आप 2 मिनट. x एक्सिस पे टाइम चल रहा है, ये देखो y, इसका y डिस्प्लेसमेंट देखो, ये तीनों हमेशा लाइन में है ना. तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये इस पार्टिकल के मोशन का ग्राफ है. बोलो. नहीं होगी क्योंकि हम लोग आइडियल स्प्रिंग स्टडी कर रहे हैं जिसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता. ये एक आइडियल स्प्रिंग है. सो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. एज यू कैन सी दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ. साइन कोसाइन ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कैलकुलस भी आएगा इस चैप्टर में, डिफरेंशिएशन काफ़ी आएगा. सो आर यू कंफर्टेबल विद दिस? नाउ आगे मूव करूं मैं? हाँ चलो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन. प्रोजेक्शन, अगर आप यहाँ से लाइट शाइन करोगे तो ये सर्कुलर मोशन जो है
इसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। वेलोसिटी एक टाइम पे आके वेलोसिटी जीरो। हाँ, आप बताओ कहाँ हो रही है वेलोसिटी जीरो? 2 सेकंड पे, 1 सेकंड पे। ये पोजीशन का ग्राफ है, ये पोजीशन का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इस एसएचएम में वेलोसिटी कब जीरो हो रही है पार्टिकल की? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी जीरो होती है इंस्टेंटेनियसली टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे दिखाई देती है? स्लोप जीरो ना चाहिए, मैक्सिमा। मैक्सिमा कहाँ है? यहाँ, समझे? तो 0.5 सेकेंड्स पे वेलोसिटी जीरो होती है। जहां पे ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाती है आपकी। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। सो हम इस पार्टिकल का मोशन स्टडी करेंगे। एज यू कैन सी ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस केस के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ ना वाई डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा था, यहाँ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। बेसिक आइडिया वही है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया। और क्योंकि एक्स एक्सिस ना टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिजिक्स में मोशन स्टडी करने के लिए, तो इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे आपका जो आंसर आया है वो है a cos ओमेगा टी, क्योंकि इनिशियली हमारा जो पार्टिकल है वो x इक्वल टू जीरो पे नहीं है, x इक्वल टू मैक्स पे है, x इक्वल टू आर बोल सकते हैं सर्कल का रेडियस। इनिशियली पार्टिकल जब टाइम जीरो हो रहा था, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था। यहाँ पे हम लोग ना x कोऑर्डिनेट स्टडी कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट। फिर देखो टाइम के साथ क्या होगा, x कोऑर्डिनेट आपका कम होगा धीरे धीरे। x डिस्प्लेसमेंट यहाँ प्लॉट किया है, तो धीरे धीरे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट कम होता है, फिर पार्टिकल बढ़ता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। सो पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और अगर आप ये वाला ग्राफ देखोगे, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे पार्टिकल जीरो से शुरू कर रहा है, तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वल टू जीरो पे जीरो है। फिर वो ऊपर जाता है, पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ होगा, साइन। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पता होने चाहिए। इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग साइन एक्स का ग्राफ। तो इस तरह के ग्राफ्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ सबको पता होगा, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ग्राफ को क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये ग्राफ कैसे चेंज होगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे? हाँ, अभी इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है साइन की? 1। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 2 हो जाएगी, है ना? मैक्स वैल्यू 2 हो जाएगी बस। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया मैक्स 2 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। सो मल्टीप्लाई करने से ग्राफ का एम्पलीट्यूड बोला जाता है, इसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है। प्लीज़ ध्यान दो, अगर आप यहाँ नहीं समझोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा। इतने इलस्ट्रेटिव वे में नहीं पता चलेगा आपको, बुक में से पढ़ के नहीं समझ में आएगा। पूरा चैप्टर सर के ऊपर से चला जाएगा। बहुत मैथमेटिकल चैप्टर है, हैवीली, तो आपको विजुअल क्लियर होने चाहिए पहले से ही। ये है साइन। अब मैं अगर साइन एक्स के ग्राफ की जगह साइन 2x का ग्राफ प्लॉट करूं तो वो कैसा दिखाई देगा? साइन 2x, साइन ऑफ 2x, वो सेम दिखेगा, साइन ऑफ 2x की मैक्स वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली, वेवलेंथ बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, साइन ऑफ 2x का ग्राफ श्रिंक हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाता है 2x का, 3x का और कम हो जाता है, 4x का और कम हो जाता है, 5x का और कम हो जाता है, 100 का बहुत शार्प हो जाता है। ठीक है, ओके। और सिमिलरली अगर मैं 0.5 कर दूं, 0.4, 0.3, 0.1, ग्राफ साइन का ही ग्राफ है।
उसकी जो वेवलेंथ एज यू सेड वेवलेंथ चेंज हो जाती है मल्टीप्लाई करने से। तो अगर आप सबसे जनरल ग्राफ देखोगे वो ऐसा दिखाई देगा 4 साइन लेटर्स से 2x। ये सारे कर्व्स को हम साइनोसॉइडल कर्व्स ही बोलते हैं, सबका नेचर सेम है। अब अगर मैं एक और चीज करूं, अब अगर मैं साइन x की जगह साइन ऑफ x प्लस 1 प्लॉट करूं, साइन ऑफ x प्लस 1 तो क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली, शिफ्टिंग होती है ग्राफ की, उसकी ना शिफ्टिंग लेफ्ट में होती है। साइन ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 ये ऐसा है। तो ये ग्राफ देखो, अगर आप साइमल्टेनियसली साइन x का ग्राफ देखोगे, दोनों सेम ही ग्राफ है, दोनों में शिफ्टिंग आ गई है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस शिफ्टिंग? यस एग्जैक्टली, साइन से कॉस आप ऐसे ही डिराइव करते हो। कॉस भी एक तरह का साइन ग्राफ ही है, शिफ्टेड साइन ग्राफ। सो सारे ग्राफ्स एक्चुअली एक ही ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, देखो इसे बोलते हैं, ये है साइन x प्लस 1। ये जो x प्लस 1 है इसको बोला जाता है, जो साइन लेता है इसे बोलते हैं फेज, या फेज का एक और वर्ड है एंगल। तो आप एंगल के टर्म्स में सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे एंगल क्या है साइन का? देखो यहां पे साइन क्या एंगल ले रहा है? जीरो एंगल ले रहा है ना। यहां क्या एंगल ले रहा है साइन का ग्राफ? पाई, 180 डिग्री पाई। यहां पे कितना एंगल ले रहा है? 2 पाई। तो फेज पाई और 2 पाई हो गया। यहाँ पे ये वाले ग्राफ का फेज क्या है? यहाँ फेज क्या है? फेज क्या है इसका फेज क्या है? क्या एंगल ले रहा है यहाँ? 0 डिग्री। फेज 0 ही है, या 0 रेडियंस, क्योंकि साइन 0 होता है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं, देखो x प्लस 1 0 कब होता है? जब x इक्वल टू -1। तो ये जो ग्राफ है ये -1 से शुरू होता है। जब x इक्वल टू -1 है तब इसका फेज 0 होता है, समझो? तो ये जो ग्राफ है आपका रेड ग्राफ है, वो जब -1 पे वही चीज करता है जब ये ब्लू वाला ग्राफ 0 पे करता है। ये -1 पे वो चीज करता है जो ब्लू वाला 0 पे करता है। इज दिस क्लियर? फेज को आप ऑब्जर्व करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा इमीडिएटली। एग्जैक्टली। सो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें, x प्लस 2 करते हैं, तो अब आप देखोगे लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। जब आप ऐड कर रहे हो उससे शिफ्टिंग लेफ्ट में हो रही है। तो अगर आपको कॉस चाहिए साइन से, तो मैं क्या पुट करूं यहाँ? एग्जैक्टली। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, -2 करते हैं सपोज, तो वो राइट में शिफ्ट हो गया। अब ये ग्राफ x इक्वल टू 2 पे वो चीज करेगा जो ये ग्राफ 0 पे करता है। तो ये x इक्वल टू 2 से शुरू होगा, साइन 0 हो जाएगा। तो साइन से कॉस कैसे मिलेगा मुझे? साइन से लेफ्ट में शिफ्ट करने पे कॉस मिलेगा कि राइट में? कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा? अच्छे से बोलो ना, रेडियंस में बोलो। π/2। सो x लेफ्ट में कैसे शिफ्ट करते हैं? ऐड करके कि सब्ट्रैक्ट करके? ऐड करके। उल्टा है, ऐड करने से लेफ्ट में जाते हो आप। थोड़ा याद रखो, आप सोचोगे ऐड करने से राइट में जाते हैं ना। 2 + 3 करोगे तो और राइट में जाओगे, 3 + 5 करोगे तो और रियल लाइन पे राइट में जाते हो। ग्राफ में लेफ्ट में शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं π/2। तो ये आपका π/2। तो ये प्रिसाइजली आपका कोसाइन ग्राफ हो गया। सो साइन ऑफ x प्लस π/2 इज कोसाइन ऑफ x। सो इज द सेम ग्राफ। अगर मैं x प्लस π/2 की जगह x प्लस पाई करूं तो क्या हो जाएगा? कौन सा ग्राफ हो जाएगा? नहीं, नो, ट्राई करो आप। साइन ऑफ x प्लस π/2 पूछ रहे हैं, ये क्या होता है? व्हाट इज साइन ऑफ x प्लस π/2? देखो AST
टी सी। सो x अगर आप एक्यूट लोगे तो पाई बाय 2 ऐड करने से कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। पाई बाय 2 की शिफ्टिंग करने से बस कॉस में कन्वर्जन होता है। आपको बस ये टेस्ट करना है माइनस होगा कि प्लस। ये तो पॉजिटिव होता है ना साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये प्लस होता है। अगर आप कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 2 करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो माइनस साइन x हो जाएगा। पाई बाय 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से चेंज होता है, साइन कॉस में बदल जाता है। आपको बस SIGN देखना है, साइन, वो वाला साइन, कि पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव। कॉस नेगेटिव साइन देगा। और कॉस की भी आप शिफ्टिंग ऐसे ही कर सकते हो। हम लोग कॉस के ग्राफ से शुरू करते हैं, उसको भी शिफ्ट कर देते हैं एक बार। कॉस एक्स, ये कॉस एक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस के ग्राफ को शिफ्ट करते हैं पाई बाय 2 से, ऐड करते हैं, ऐड पाई बाय 2, तो क्या मिलेगा? या माइनस साइन एक्स हो गया, ये है ना, साइन एक्स फ्लिप हो गया। साइन एक्स का अगर आप देखोगे तो वो ऊपर होता है। सो दिस इज अ फ्लिप्ड साइन ग्राफ। क्लियर? तो भी फ्लिप होता है, आपने क्या दो ग्राफ पहले भी फ्लिप हो गया? हाँ, यस यस, वो मैंने ये किया था, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई किया था, इससे भी फ्लिप हो गया आपका ग्राफ। सो अगर आप सबसे जनरल साइन ग्राफ लोगे, अब मैं सबसे जनरल ग्राफ लिख देता हूँ, साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। जितनी भी आपकी वेव्स होती हैं, आपके सिग्नल्स होते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ या लाइट या साउंड वेव या वेव जो सॉलिड में ट्रैवल करती है, हर तरह के वाइब्रेशंस जो होते हैं उनको मॉडल किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अगर मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे सिग्नल्स, जितने भी सिग्नल ट्रांसमिशन, सब इसी फंक्शन के बेसिस पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। तो सबसे जनरल हम लोग फंक्शन लिख देते हैं, वेव लिख देते हैं, जिसको मैं एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ 3। अब मैं इसको भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 फॉर इंस्टेंट, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कुछ भी, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, अप टू मी। सो ये सबसे जनरल फंक्शन हो गया। अब मैं इन नंबर्स को चेंज कर करके कोई भी आप मेरे को साइन कर्व बोलोगे ना, वो मैं आपको दे दूंगा। ये सबसे जनरल साइनोसॉइडल कर्व है। इसको, इसके नाम देख लेते हैं। इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड, जिससे आप मल्टीप्लाई करो, जो इस ग्राफ की हाइट को डिसाइड करता है, एम्पलीट्यूड। ये जो है इसे हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसको एक तरह से वेवलेंथ को नहीं, वेव नंबर बोला जाता है। वेवलेंथ का ही आइडिया है। और इसे बोलते हैं फेज, इनिशियल फेज बोला जाता है, इनिशियल फेज। सो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसे बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एज वी विल सी।